We are starting with our fourth chapter, that is tribals, the coos, and the vision of a golden age. Okay, so tribal includes a society. Okay, the coos means outsiders. Example British. And the vision of a golden age. Okay, let's start with our introduction first. Okay, so in 1895, a man named Birsa was been roaming the forest and the villages of Chota Nagpur in Jharkhand. People said he had miraculous powers. He could cure all diseases and multiply grain. Birsa himself declared that God had appointed him to save his people from trouble, free them from the slavery of Dikos. Soon thousands began following Birsa, believing that he was Bhagwan and had come to solve all their problems. Birsa was born in a family of Mundas, a tribal group that lived in Chota Nagpur, but his followers included other tribals of the region, Santals and Orans. All of them, in different ways, were unhappy with the changes they were experiencing and the problems they were facing under British rule. Their familiar ways of life seemed to be disappearing, their livelihoods were under threat, and their religion appeared to be in danger. Okay, so here introduction is given about the villagers and their problems. Okay, so first paragraph it is given for Birsa. He was a man found roaming in the forest where near Chota Nagpur. Okay, so what people said about him was that he was having a miraculous powers. Okay, उनके पास miraculous power था, means वो जादू कर सकते हैं ऐसा लोग बोलते थे. ओके, ही कुड क्योर ऑल डिजीजेस एंड मल्टीप्लाई ग्रेन. जिनको भी जो भी डिजीज़ हुई होती है वो उनको क्योर कर देता है, उनको ठीक कर देता है. ओके, एंड मल्टीप्लाई द ग्रेन. जो भी फार्मर्स वो लेस प्रोडक्शन से डिप्रेस्ड होता है उन्हें वो हेल्प करता है कि उनके जो ग्रेन्स है उसे वो डबल कर देता है. ओके, so what people call him what people said about him that was he was having miraculous power. Okay, Birsa himself declared that God had appointed him to save. Okay, बिरसा क्या बोलता था कि गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है टू सेव माई ट्राइब्स फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द कोज. बिरसा कहता था कि मुझे गॉड ने अपॉइंट किया है फॉर वॉट, टू हेल्प माई ट्राइब्स फ्रॉम ट्रबल, फ्री देम फ्रॉम द स्लेवरी ऑफ द कोज. मीन्स जो आउटसाइडर्स है वो आके जो परेशान करते हैं मेरे ट्राइब पीपल्स को, मेरे विलेजर्स को, उनको मैं सेव करने के लिए गॉड ने मुझे अपॉइंट किया है. ओके, फिर जो विलेजर्स थे और जो भी लोग थे वो उन पे बिरसा पे ट्रस्ट करने लगे और उससे अपना भगवान मानने लगे, मीन्स अपना गॉड मानने लगे और उनको फॉलो करने लगे. सो आफ्टर द थाउजेंड्स ऑफ पीपल बिगैन फॉलोइंग हिम, उनको फॉलो करने लगे एंड बिलीविंग दैट ही वॉज गॉड. ओके, वो उन लोगों का गॉड है वो ऐसा बिलीव करने लगे एंड हैड कम टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स. वो उनका गॉड है वो और वो उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसे वो सॉल्व करेगा और उनको हेल्प करेगा. और ये कौन सोचता है? विलेजर्स. ओके, सो who was Birsa? Birsa was born in a family of Mundas. Okay, so surname was Birsa Munda. Okay, so Birsa was born in a family of Mundas.
a tribal group that lived in Chota Nagpur. It was a tribal group. He belongs to the tribal group, okay? And where he lived in Chota Nagpur. But his followers included other tribals of the region. But यहाँ पे मैंने जो बोला कि उनके thousands of followers थे, उनमें कौन कौन से लोग include थे, तो उनके following में दूसरी रीजन के लोग include थे. So who were there? Santhals and Orange. Okay, so the other tribal was Santhals and Orange. Okay, so all of them in different ways were unhappy. और ये जो ट्राइबल रीजन के लोग हैं वो भी अनहैप्पी थे, अलग मीन्स डिफरेंट वेज में वो भी अनहैप्पी थे. फॉरवर्ड जो भी चेंजेस हो रहे थे उनसे वो अनहैप्पी थे. और वो चेंजेस कौन कर रहा था? ब्रिटिश रूल. जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई तब ब्रिटिश रूल भी आया. ओके, सो ब्रिटिशर्स वो सब उन लोगों के हिसाब से करने लगे. जो एग्जिस्टिंग पीपल्स थे जो एग्रीकल्चर का ख्याल रख रहे थे, मीन्स they were giving good results in agriculture and all of that. okay, so वो क्या हुआ कि जब भी ब्रिटिश आए, ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, तब वो डिस्ट्रॉय होने लगा. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को, विलेजर्स को अपने हिसाब से काम नहीं करने दे रहे थे. वो उनका हुक्म चलाते थे कि जो वॉट एवर दे आर टेलिंग अस टू डू, वी हैव टू फॉलो दैट ओनली. ओके, so the familiar ways of life seem to be disappearing. so वो जो भी तरह से, जिस भी तरह से वो अपना काम कर रहे थे वो डिसअपियरिंग होने लगा, वो नहीं दिख रहा था. वाई? द लाइवलीहुड्स वर अंडर थ्रेट एंड द रिलीजन अपीयर टू बी इन डेंजर. और वो काम नहीं कर रहे थे, कुछ काम नहीं करते थे, इसलिए उनका फैमिली नहीं चल रहा था. सो their religion appeared to be in danger. so what were they called? that their religion, उनका जो religion है वो अब danger में है. okay, so what problems did बिरसा set out to resolve? okay, अब यहाँ पे सारे questions हैं, उनका हम answer चैप्टर में देखेंगे. what problems did बिरसा set out to resolve? who were the outsiders being referred to as Dikus, and how did they enslave the people of the region? What was happening to the tribal people under the British? How did their lives change? These are some of the questions you will read about in this chapter. Okay, you have read about tribal societies last year. Most tribes had customs and rituals that were very different from those laid down by Brahmins. These societies also did not have the sharp social divisions that were characteristics of caste societies. All those who belonged to the same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, this did not mean that there were no social and economic differences within a tribe. Okay, so ये सारे जो भी questions हैं उनको हम अपने चैप्टर में पढ़ेंगे. ओके, और ये जो पैराग्राफ है उनमें बोला गया है कि अपने जो लास्ट ईयर जो अपने ट्राइबल्स सोसाइटी के बारे में और रिचुअल्स और सब डिफरेंट वेज में अपना कस्टम, अपने रिचुअल्स फुलफिल करते हैं, अपने कस्टम्स फुलफिल कर, बट इन ऑल डिफरेंट वेज. ओके, बिकॉज देयर वर डिफरेंट पीपल्स बिलोंगिंग फ्रॉम द डिफरेंट रीजन. ओके, सो डिफरेंट फ्रॉम दोज लेड डाउन बाय ब्राह्मण्स. जो भी ब्राह्मण्स कहते हैं कि ये आपका ट्राइब है, सो आपके ट्राइब में ऐसा होता है, उनके ट्राइब में ऐसा होता है, जो भी ब्राह्मण्स कहते हैं वो उनको फॉलो करते थे. ओके, सो these all were the rituals and the orthodox thinking that were followed by our ancient peoples. Okay, and all those who belonged to same tribe thought of themselves as sharing common ties of kinship. However, these
did not mean that there were no special and economic differences within tribe. और जो भी ट्राइब के पीपल थे वो बीच में उनके बीच में कंपटीशन करने लगे कि नहीं ये ऐसा है तो मैं उनसे ज़्यादा एग्रीकल्चर करूँगा, और वो सबों के समहाउ डिफरेंसेस होने लगे उनके ट्राइब में भी. ओके, सो इन डिटेल we will study in a chapter. So let's start with a chapter. So how did tribal groups live? वो कैसे रहते थे? Okay, so some by the 19th century tribal people in different parts of India were involved in a variety activities. वो अलग अलग activities में involved हो गए थे. Okay, so first here is some were jhum cultivators. Okay, so let's start. Some of them practiced jhum cultivation, that is shifting cultivation. Jhum cultivators jhum cultivators means जो cultivate करते हैं, जो क्रॉप्स को कल्टीवेट करते हैं उनको हम कल्टीवेटर्स बोलते हैं. और जूम कल्टीवेशन को हम क्या बोल सकते हैं? शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी बोल सकते हैं. ओके, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड हैज shifting cultivation. Okay, this was done on small patches of land, mostly in forest. Okay, वो ये जो cultivation है वो small land में हो जाता है. मीन्स उसके लिए हमको big land की ज़रूरत नहीं थी. Okay, the cultivators cut the tree tops to allow sunlight to reach the ground and burn the vegetation on the land to clear it for cultivation. Okay, so the cultivators cut the tree tops. Okay, so example, here is a tree. Okay, different. Okay, all the trees are together. Okay, so यहाँ पे क्या हमको बोला गया कि the cultivators cut the tree tops. ट्री टॉप्स मीन्स ये जो ट्री के टॉप्स है ना उनको वो कट कर देते थे. क्यों कट करते थे? बिकॉज टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड. यहाँ पे जो ट्री टॉप्स आ जाते थे वो बहुत घने होते, मीन्स बहुत सारे होते हैं. तो क्या होता है कि ये सब जॉइंट ट्रीज होते हैं. सो इनके जो रूट्स हैं ना उन तक सनलाइट रीच नहीं हो पा रही थी और ग्राउंड में भी सनलाइट नहीं रीच हो पाए थे. उससे क्या होता था कि जो दूसरे क्रॉप्स हम कल्टीवेट करना चाहते हैं उनको सनलाइट नहीं मिलती. सो सनलाइट नहीं मिलती, इस तरह से वो ठीक से ग्रो नहीं कर पाते. इसलिए कल्टीवेटर्स ने क्या किया कि दे कट द ट्री टॉप्स. ओके, टू अलाउ सनलाइट टू रीच द ग्राउंड तक वो रीच हो सके उसके लिए कल्टीवेटर्स ने ये ट्री टॉप्स को कट कर दिया. ओके, एंड बर्न्ड द वेजिटेशन ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन. और वो कट करके उनको क्या कर दिया? उनको बर्न कर दिया, उनको आग लगा दिया. ओके, ऑन द लैंड टू क्लियर इट फॉर कल्टीवेशन. वो लैंड को क्लियर करने के लिए उनको बर्न कर दिया. तो वो लैंड क्लियर हो तो वो क्या कर सकते हैं? वो फिर से कल्टीवेशन कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने लैंड को क्लियर कर दी. दे स्प्रेड द ऐश फ्रॉम द फायरिंग. ओके, तो इनको जो कट किया फिर उन्होंने पहले क्या किया? कट किया, फिर बर्न किया. ओके, बर्न करते हैं तो फिर क्या फॉर्म होता है? ऐश. ओके, सो फिर जो बर्न किया तो वो ऐश में कन्वर्ट हो गया. ओके, सो विच कंटेंट पोटैश टू फर्टिलाइज द सॉइल. जो ऐश थी वो उसमें बहुत सारा फर्टिलाइज़र था. सो वो किसके काम आता है? फॉर सॉइल. सो दूसरे क्रॉप्स जो हम कल्टीवेट करने वाले थे उनको वो हेल्पफुल होगा, बिकॉज वो ऐश हेल्पफुल होगा बिकॉज दे आर वेरी गुड इन फर्टिलाइजर. ओके, दे यूज द एक्स टू कट ट्रीज एंड दे होप टू स्ट्रेच द सॉइल इन ऑर्डर टू प्रिपेयर इट फॉर कल्टीवेशन. एक्स टू कट ट्रीज को कट करने के लिए उन्होंने एक्स का इस्तेमाल किया. ओके,
and hoed to stretch the soil in order to prepare it for cultivation. ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि वो ठीक से cultivation कर सके. They broadcast the seeds. Broadcast the seeds मतलब उन लोगों ने दूसरे seeds को cultivate किया, that is scattered the seeds on the field instead of plowing the land and sowing the seeds. Once the crop was ready and harvested, they moved to another field. A field that had been cultivated once was left fallow for several years. Okay. क्या करते थे वो लोग? जब वो सब रेडी कर देते थे वो तब once the crop was ready and harvested, they moved to another field. वो रेडी हो जाता है और हार्वेस्ट होने वाला होता है. What they did, they moved to another field. वो another field में move हो जाते हैं, मीन्स वो दूसरी जगह दूसरे फील्ड को वो खोजने लगते हैं. फॉर व्हाट? फॉर अनदर कल्टिवेशन. ओके. अ फील्ड दैट हैड बीन कल्टिवेटेड वंस वाज लेफ्ट फैलो फॉर सेवरल ईयर्स. जो फील्ड उन्होंने कल्टिवेट की थी वो ऐसे ही उनको छोड़ के चले जाते हैं. फॉर सेवरल ईयर्स वो ऐसे ही रहती है. फैलो मीन्स क्या? अ फील्ड लेफ्ट अनकल्टिवेटेड फॉर अ वाइल सो दैट सॉइल रिकवर्स फर्टिलिटी. वो फर्टिलिटी रिकवर करते इसलिए उनको ऐसे ही रखा जाता है. ओके. बट शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स वर फाउंड इन द हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया. ओके. ये जो शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है वो कहाँ पे फाइंड होते हैं? जो हिली एरिया होता है, हिली एंड फॉरेस्ट ट्रैक्स होता है, वहाँ पे ही वो हमें मिलते हैं. वो राजस्थान में क्यों नहीं हो सकते? बिकॉज राजस्थान में ग्रीनरी नहीं है. वो वहाँ पे बहुत सारे ट्रीज़ नहीं है, वहाँ पे फर्टिलाइज्ड लैंड नहीं है, इसलिए हम राजस्थान में वो सब नहीं कर सकते. ओके. इसलिए नॉर्थ ईस्ट एंड सेंट्रल इंडिया में वो हम कर सकते हैं. मीन्स शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स है वो हम इस एरिया में ही फाइंड कर सकते हैं, इस एरिया में ही हम उसे देख सकते हैं. ओके. The lives of these tribal people depended on free movement within a forest and on being able to use the land and forest for growing their crops. That is only the way they could practice shifting cultivation. Okay, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि वो जब क्रॉप्स रेडी हो जाते हैं और हार्वेस्टेड के लिए रेडी होते हैं, वो क्या करते हैं? दे मूव टू अनदर फील्ड बिकॉज दे वांटेड टू गेट दैट पर्टिकुलर लैंड रिकवर्स फर्टिलाइज़र. वो जो लैंड है वो फर्टिलाइज़र को रिकवर करे, इसके लिए वो ऐसे ही छोड़ देते हैं. तो वो वन बाय वन जो फील्ड को चेंज करते रहते हैं उनके हम क्या बोलते हैं? जूम कल्टिवेशन और शिफ्टिंग कल्टिवेशन. ओके. और वो जो लोग उसे करते हैं हम उसको कल्टिवेटर्स बोलते हैं. ओके. सो यह वी कैन सी द मीनिंग ऑफ Zoom cultivators and shifting cultivators. I hope you understand this topic. Okay. Okay. Now comes some were hunters and gatherers. Okay. So first we'll go through it. In many regions, tribal groups lived by hunting animals and gathering forest produce. They saw forest as essential for survival. The Khonds were such a community living in the forest of Orissa. They regularly went on cultivative hunts and then divided the meat among themselves. They ate fruits and roots collected from the forest and cooked food with the oil they extracted from the seeds of the sal and mahua. They used many forest shrubs and herbs for medicinal purposes and sold forest produce in the local markets. The local weavers and leather workers turned to the Khonds when they needed supplies of kusum and palash flowers to color their clothes and leather. Okay. So इसमें क्या हमको बोला गया है कि
hunters and gatherers. In many regions, tribal groups live by hunting animals and gathering forest produce. ट्राइबल ग्रुप में सम ग्रुप ऐसा था कि वो किन पे डिपेंड होते थे, फॉरेस्ट पे डिपेंडेड होते थे. ओके, दे सॉ फॉरेस्ट एज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. वो फॉरेस्ट को किस तरह से देखते थे कि वो फॉरेस्ट से ही सर्वाइव करते हैं. फॉरेस्ट इज द मेन पर्पज फॉर देम टू सर्वाइव. ओके, द खोन्स वर सच a community living in the forest of Orissa. It is a community, okay, living in Orissa. Khons is a community. They regularly went on collective hunts and then divided the meat among themselves. वो community क्या करती थी कि वो continuously कहाँ पे जाती थी? To collect hunts. वो हंटिंग करने जाती थी और वो जो भी कलेक्ट होता था वो उनको डिवाइड करके उनका जो मीट होता है वो बांट देते थे. ओके, और फिर वो ऐसे अपना सर्वाइव करते थे. जो भी हंटिंग किया उन लोगों ने, वो जो भी एनिमल्स का जो भी मीट होता है वो आपस में जितने भी लोग होते हैं उनमें वो बांट देते हैं. ओके, दे एट फ्रूट्स एंड रूट्स कलेक्टेड फ्रॉम द फॉरेस्ट. वो फ्रूट्स और रूट्स भी खाते थे फॉरेस्ट से जो भी मिलता था वहाँ से. ओके, एंड कुक्ड फूड विद द ऑयल दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द सीड्स ऑफ द शाल एंड महुआ. और वो फूड किस ऑयल में कुक्ड करते थे कि साल एंड महुआ. ओके, साल मीन्स अ ट्री है, उसमें से हमको ऑयल मिलता है. एंड महुआ वो फ्लावर होता है, उसे हम खा भी सकते हैं. ओके, एंड वो अल्कोहल बनाने में भी यूज़ होता है. ओके, दे यूज मैनी फॉरेस्ट श्रब्स एंड हर्ब्स फॉर मेडिसिनल पर्पजेज. श्रब्स और हर्ब्स को वो मेडिसिनल पर्पजेज में यूज़ करते थे. ओके, एंड सोल्ड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन द लोकल मार्केट्स. और वो फॉरेस्ट से जो भी प्रोड्यूस होता था, उनको जो भी मिलता था वो मार्केट में बेच देते थे. ओके, द लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स टर्न्ड टू द कोन्स व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश. ओके, सो यहाँ पे क्या बोला? द लोकल वीवर्स एंड द लेदर वर्कर्स टर्न्ड टू द कोन्स. जो लोकल वीवर्स एंड लेदर वर्कर्स थे वो खोन्स में टर्न हो गए. बिकॉज क्यों? व्हेन दे नीडेड सप्लाईज ऑफ कुसुम एंड पलाश फ्लावर्स टू कलर देयर क्लोथ्स एंड लेदर. ये कुसुम और जो पलाश है वो इतने डार्क फ्लावर्स आते थे कि वो अपना रंग छोड़ते. मीन्स उनसे वो हम एक वाइट कपड़े में और वो फ्लावर को हम साथ में रखते थे ना, तो वो जो फ्लावर का रंग सपोज ऑरेंज होता है तो वो वाइट क्लॉथ पूरा ऑरेंज कलर का हो जाता है. बिकॉज वो फ्लावर कलर छोड़ता था इसलिए. ओके, सो what they were doing, weavers and leathers wanted that kusum and palash flowers to color their clothes and leathers. Okay, so what they did, they turned to cones when they wanted it. Okay, so hope you understand it. Now next comes क्या है कि वो राइस और ग्रेन्स उन लोगों को कहाँ से मिलते थे. ओके, फ्रॉम वेयर डिड दे गेट ऑल. सो लेट्स से इट फ्रॉम वेयर डिड दिस फॉरेस्ट पीपल गेट देयर सप्लाईज ऑफ राइस एंड अदर ग्रेन्स. ओके, अदर ग्रेन्स और राइस का सप्लाई उन लोगों को कहाँ से मिलता था. At times they exchanged goods, getting what they needed in return for their valuable forest produce. वो जो भी उन लोगों से फॉरेस्ट से प्रोड्यूस होता था और उन लोगों को जो चाहिए था. सपोज दे आर shrubs and herbs. ओके, shrubs and herbs वो एक्सचेंज करते थे अगेंस्ट. मीन्स उनकी अपोज जो पार्टी है उनको shrubs and herbs चाहिए और ये जो ट्राइबल्स हैं उनको क्या चाहिए? उनको राइस चाहिए. तो वो उनको हर्ब्स एंड श्रब्स देते थे और जो वो अपोज्ड पार्टी है वो उन लोगों को राइस प्रोवाइड करती थी. ऐसे वो गुड्स एक्सचेंज करते थे. ओके, एट अदर टाइम्स दे बॉट गुड्स विद द स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग दे हैड.
और उनके पास जो स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्निंग होती है उनसे वो अपने गुड्स बाय करते हैं जो उनको ज़रूरत होती है. ओके, सम ऑफ देम डिड ऑड जॉब्स इन द विलेजेस कैरिंग लॉड्स और building roads, while others labored in the fields of peasants and farmers. और some people क्या करते थे कि वो और जॉब्स करते थे. कि कैसे जॉब्स? तो कैरिंग लोड्स, वो यहाँ मीन्स फ्रॉम द स्टोर दे आर डिलीवरिंग द ग्रेन्स एंड ऑल टू द फैमिलीज. ओके, सो कैरिंग लोड्स, बिल्डिंग रोड्स को बिल्ड करते थे. वाइल अदर लेबर्ड इन द फील्ड ऑफ पीसेंट्स, तो अदर क्या करते थे? लेबरिंग वर्क करते थे दूसरों की फील्ड में. ओके, व्हेन सप्लाईज ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस श्रंक, ट्राइबल पीपल हैड टू इंक्रीजली वंडर अराउंड इन सर्च ऑफ वर्क एज लेबरर्स. तो उनको क्या करना पड़ता था कि उनको लेबर की जॉब करनी पड़ती थी. ओके, और वो उनको सर्च कर रहे थे कि some people please take us as laborers. Okay, उनको beg करना पड़ता था. But many of them, like the beggars, okay, it is a tribe, okay, it's saw themselves as the people of the forest. ये जो tribe है ना, वो सिर्फ forest में ही अपना गुजरान करती थी. वो किसी भी और के पास पैसे के लिए नहीं जाती थी. जितना हो सके फॉरेस्ट से उतने में ही वो अपना काम चलाते थे. ओके, सॉ देमसेल्फ एज अ पीपल ऑफ द फॉरेस्ट, वो अपने आप को पीपल ऑफ फॉरेस्ट कहते थे. हु कुड ओनली लिव ऑन द प्रोड्यूस ऑफ द फॉरेस्ट जो भी प्रोड्यूस करती है हम उन पे ही रहेंगे, हम उतने में ही सर्वाइव करेंगे. ओके, इट वॉज बिलो द डिग्निटी ऑफ बेगा टू बिकम अ लेबरर. वो उनकी डिग्निटी ही नहीं थी, उनके डिक्शनरी में वो वर्ड ही नहीं था कि वो लेबरर का वर्क करे. ओके, ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ्टन नीडेड टू बाय एंड सेल इन ऑर्डर टू बी एबल टू गेट द गुड्स दैट वर नॉट प्रोड्यूस्ड विद इन द लोकेलिटी. दिस लीड टू द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स एंड मनी लेंडर्स. Traders came around with things of sale and sold the goods at high prices. Okay, क्या होता था कि tribal peoples often needed to buy and sell in order to be able to get the goods that were not produced. Tribal groups जो थे वो हमेशा एक need में थे कि to buy and sell in order to able to get the goods. उनको जो भी goods चाहिए थे वो कैसे करते थे? कुछ थिंग्स बाय करते थे, कुछ थिंग्स सेल भी कर देते थे. क्यों ऐसा करते थे? बिकॉज जो चीज़ उन लोगों को चाहिए ना वो उन लोगों से फॉरेस्ट से प्रोवाइड नहीं हो सकती थी. ओके, सो दे यूज टू डू दिस लीड टू द डिपेंडेंस ऑन ट्रेडर्स. ये सब वो करते थे, मीन्स बेचते थे, सेल करते थे, फिर सम चीज़ों दूसरे लोगों से बाय करते थे. इससे क्या होने लगा कि वो ट्रेडर्स पर डिपेंडेंट होने लगे. ओके, एंड मनी लैंडर्स, और जो मनी लैंडर्स मीन्स जो हमको मनी प्रोवाइड करते हैं उन लोगों पे भी वो डिपेंडेंट होने लगे. ट्रेडर्स कम अराउंड विद द थिंग्स ऑफ सेल एंड गुड एंड सोल्ड द गुड्स एट हाई प्राइजेस. जो ट्रेडर्स है ना वो क्या करने लगे और वो क्या सोचने लगे कि ये जो ट्राइबल कम्युनिटी है वो उनको हमारी ज़रूरत है. वैसे वो जो भी चीज़ उन लोगों को चाहिए थी ट्राइबल पीपल्स को, वो उनके प्राइसेस हाई करने लगे. ओके, मनी लैंडर्स गिव लोन्स विथ which the tribals meet their cash needs, adding to what they earned, but the interest charged on the loans was usually very high. जो मनी लैंडर्स थे ना वो उनको पैसे तो प्रोवाइड करते थे पर वो जो इंटरेस्ट वो ट्राइबल पीपल को देना होता है वो इंटरेस्ट वो बहुत हाई रखने लगे. ओके, सो for the tribal market and commerce often meant debt and poverty. They therefore came to see the moneylender and trader as evil outsiders and the cause of their misery. इससे क्या होने लगा कि जो ट्राइबल का मार्केट था वो धीरे धीरे डाउन होने लगा और वो पॉवर्टी को फेस करने लगे. सो धीरे धीरे वो जो ट्राइबल पीपल्स थे वो उन लोगों को जो आउटसाइडर्स थे मीन्स ट्रेडर्स वॉज
outsiders, like they were foreign, they were British, okay, and moneylenders and traders were outsiders. So वो उनको evil means उनका दुश्मन समझने लगे. Okay, so this happened. So now some herded animals. Okay, तो herded animals में क्या होता है कि many tribals group lived by herding and rearing animals. Okay, कैसे वो अपनी लाइफ स्पेंड करते थे और सर्वाइव करते थे बाय हीडिंग एंड रेयरिंग एनिमल्स. ओके, दे वो पैस्टरलिस्ट हु मूव्ड विद देयर हर्ड्स कैटल ऑफ शीप अकॉर्डिंग टू द सीजन्स. वो क्या करते थे कि सीजन वाइज वो अपने कैटल्स और शीप के ग्रुप से उनके हर्ड से वो मूव करते थे. ओके, बाय सीजन टू सीजन. व्हेन द ग्रास इन द वन प्लेस वाज एग्जॉस्टेड मीन्स वो एक जगह पे जब ग्रास नहीं होती तो दे मूव टू द अनदर एरिया, तो वो अनदर एरिया में वो मूव हो जाते हैं. ओके, और जो भी ग्रास फील्ड एरियाज है उनका यहाँ पे नेम मेंशन किया गया. ओके, सो लेट्स say to it. The Van Gujars of the Punjab hills and the Labadis of Andhra Pradesh were cattle herders. Okay, क्या थे वो? cattle herders थे. वहाँ पे कैटल्स होते थे. द गडीज ऑफ कुल्लू व शेफर्ड्स एंड द बकरवल्स ऑफ कश्मीर रेड गोट्स. ओके, सो यहाँ पे इतना ही हमको हर्डेड एनिमल्स में दिया गया है और नोट दिया गया है कि अबाउट दिस रीड मोर अबाउट दैम इन योर हिस्ट्री बुक नेक्स्ट ईयर. और डिटेल में आप नेक्स्ट ईयर में पढ़ोगे. ओके, सो हियर द टॉपिक इज ओवर. नाउ नेक्स्ट कम्स दी some took to settled cultivation. Okay, so let's go through it first. Even before the 19th century, many from within the tribal groups had begun settling down. वो सब settle होने लगे. Okay, and cultivating their fields in one place year after year instead of moving from place to place. वो जो लोग थे ट्राइबल पीपल से वो प्लेस टू प्लेस मूव कर रहे थे. ओके, बट वो क्या करने लगे अब वो सेटल होने लगे. सेटलिंग डाउन, दे वर सेटलिंग डाउन. ओके, एंड कल्टिवेटिंग देयर फील्ड्स इन वन प्लेस ईयर आफ्टर ईयर. वो एक जगह से दूसरी जगह वो अपना फील्ड्स को कल्टिवेट करने लगे. दे बिगैन टू यूज द प्लॉ एंड ग्रेजुअली गॉट्स राइट ओवर द लैंड्स दे लिव्ड ऑन. पहले क्या था कि वो जो भी लैंड पर रह रहे थे, जो भी लैंड पर वो कल्टिवेट कर रहे थे, उन लैंड पर उन लोगों का राइट नहीं होता. बट अब क्या होने लगा, दे आर सेटलिंग डाउन एंड दे आर हैविंग ऑल द राइट्स. ओके, उनको राइट्स मिलने लगा. In many cases, like the Mundas of Chota Nagpur, the land belonged to the clan as a whole. वो जो land थी वो fully उनको belong करने लगी. All the members of clan were regarded as the descendants of the original settlers who had first cleared the land. Okay, क्या होने लगा कि वो जो छोटे नागपुर से जो मुंडाज लोग थे उनको फुल्ली राइट मिला कि उनको लैंड जो थी वो जो भी लैंड पर कल्टिवेट कर रहे थे वो लैंड फुल्ली उनके हाथ में थी. मीन्स वो उन पर रूल कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज दे वर द डिसेंडेंट्स ऑफ द ओरिजिनल सेटलर्स हु हैड फर्स्ट क्लियर द लैंड. वो फर्स्ट ट्राइब थे टू क्लियर द लैंड्स. ओके, इसलिए उनको fully right होते थे. Therefore all of them has rights on the land. Okay, every often some people within the clan acquired more power than others. फिर क्या होने लगा, वो जो people थे उनको more powers चाहिए थे in compared to others. Okay, some became chief and other followers. कोई लोग था वो chief बन गए और other follower बन गए. Okay, powerful men often rented out their lands instead of cultivating in it themselves. जो भी ज़्यादा पैसे वाला होता है, रीच होता है, वो क्या करने लगा, उनकी जो लैंड होती है ना वो उनको रेंट पे देने लगे फॉर कल्टिवेटिंग. वो खुद से दे वर नॉट डूइंग
cultivation by their own. But what they did कि they provided their lands on rent to the other peoples for cultivation. Okay, so वो other people को cultivation के लिए अपनी land provide कर रहे थे. Okay, so British officials saw settled tribal groups like the Gonds and Santals as more civilized than hunters gatherers और shifting cultivators. Okay, so British ने क्या देखा कि tribal groups में जो Gonds and Santals groups थे they were more civilized, वो ज़्यादा civilized थे in comparison to him, like hunters and gatherers और shifter cultivators से जो Santals and Gonds थे they were more civilized. Those who lived in the forest were considered to be wild and savage. They needed to be settled and civilized. क्या बोला गया है कि जो फॉरेस्ट में रहते हैं ना उनको वो क्या कंसिडर्ड होते हैं एज वाइल्ड. ओके, सो व्हाट they needed to be settled and civilized. Okay, now how did colonial rule affect tribal lives? Okay, जब कॉलोनियल रूल आया वो कैसे अफेक्ट किया ट्राइबल लाइफ्स को वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे. ओके, सो व्हाट हैपेंड टू ट्राइबल्स chief. Okay, so before the arrival of the British in many areas the tribal chief were important people. Means जब British were not there जो भी tribal people होते थे tribal chief होते हैं they were the important. Okay, but what happened, they enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. वो जो ट्राइबल चीफ होते थे ना उनके वो they enjoyed a certain amount of economic power. Whatever power they were having they enjoyed it. Okay, and had the right to administer and control the territories. उनके पास they were having the right to administer and control that territories. Okay, in some places they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. In some cases what happened that they were having their own police and making their own local rules. Okay, they had their own police and decided on the local rules of land and forest management. Okay, forest management और लैंड को हमको कैसे डेवलप करना है फॉरेस्ट को कैसे डेवलप करना है वो लोग डिसाइड करने लगे. अंडर द ब्रिटिश रूल द फंक्शन एंड पावर ऑफ द ट्राइबल चीफ चेंज्ड कंसिडरेबली. ये सब वो कर रहे थे बट व्हाट हैपेंड आफ्टर द ब्रिटिश अराइव दीज ऑल चेंज्ड. Okay, the functions they were having, the powers they were having, they all changed. Okay, they were allowed to keep their land titles over a cluster of villages and rent out their lands. वो लोग को क्या बोला गया कि आपके पास जो लैंड है वो ऐसे ही पड़ी है वो आपको रेंट पे देनी है. Okay, but they lost much of their administrative power. But whatever power they were having they lost all their powers. Okay, and were forced to follow laws made by British officials in India. और उनको pressurized किया, they were pressurized to follow the rules followed by given by the Britishers. Whatever rules Britishers were saying that you have to follow these they were pressurized to follow that. Okay, they also had to pay tribute to the British. उनको ब्रिटिश लोगों को ट्रिब्यूट भी पे करना होता है. एंड द डिसिप्लिन द ट्राइबल ग्रुप्स ऑन बिहाफ ऑफ द ब्रिटिश. डिसिप्लिन का भी उनको ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे किनको करना पड़ता था ट्राइबल को. ओके, दे लॉस देयर अथॉरिटी दे हैड अर्लियर एंजॉयड अमॉन्ग्स देयर पीपल. वो जो अथॉरिटी थी वॉट एवर अथॉरिटी दे वर हैविंग दे मीन्स ट्राइबल पीपल्स वर हैविंग दैट अथॉरिटी दे लॉस्ट इट एंड दे लॉस्ट ऑल द अर्लियर एंजॉयड amongst their people and were unable to fulfill their traditional function. वो जो earlier time spend किया था अपने people से अपने peoples के साथ और जो भी authority उन लोगों के पास थी वो सब अब कुछ नहीं रहा और उनका जो traditional function होता है वो
सेलिब्रेट करना भी उनके पास राइट नहीं था, वो उनको भी सेलिब्रेट नहीं कर सकते. सो दिस हैपेंड व्हेन colonial rule effect. Okay, now what happened to the shifting cultivators? The British were uncomfortable with the group who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribals groups to settle down and become peasant cultivators. Okay, so जो ब्रिटिश थे ना, वो हमने पढ़ा कि शिफ्टिंग कल्टिवेटर्स मीन्स क्या, वो थोड़े थोड़े टाइम में अपना जो लैंड है वो शिफ्ट कर रहे थे. मीन्स once they are doing cultivation on this land, then after 2 months or 3 months they used to go over this land. Okay, so they were continuing to shifting their cultivators. Okay, but what British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. जिसके पास फिक्स्ड होम नहीं हो और जो वो कंटिन्यूस मूव कर रहा है, उनको वो पसंद नहीं था. So they wanted tribal settle down and become peasant cultivators. What they wanted the group to settle down and become peasant cultivators. Okay, settled peasants were easier to control and administrate than people who were always on the move. उससे क्या होता है कि जो भी peasants है ना, means whoever is existing in that village or in that area, they are easily controllable. मीन्स हम उनको ईजिली कंट्रोल कर सकते हैं एंड उनको हम हमारे हिसाब से काम करवा सकते हैं. ओके, बट जो पीपल मूव ऑन ऑलवेज कीप ऑन मूविंग, जो मूव ही कर रहे हैं, तो मीन्स they are not permanent. Okay, for 1 month they came, another month they used to settle somewhere else, so they are not easy to control. So what British wanted, that they wanted their jump cultivation and shifting group to settle down. Okay, the British also wanted a regular revenue source for the state. Revenue means income. उनको एक इनकम भी चाहिए थी. ओके, दे वांटेड टू हैव रेगुलर इनकम. ओके, सो दे इंट्रोड्यूस लैंड सेटलमेंट्स. उनको इनकम चाहिए थी, सो व्हाट दे इंट्रोड्यूस्ड लैंड सेटलमेंट्स. That is, they measured the land, defined the rights of each individual to that land and fixed the revenue demand for the state. वो लैंड का मेजर करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इस लैंड में से हमको कितना प्रॉफिट मिलेगा, कितना ये लैंड कल्टीवेट कर सकती है, ये सब वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने लगे. और फिर वो उन लोगों ने एक रेवेन्यू डिमांड की, इनकम डिमांड की फॉर दिस स्टेट. सम पीसन्स वर डिक्लेयर्ड लैंड ओनर्स, अदर टेंटेंस. जो पीसन्स वो पावरफुल थे, उनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ ज़्यादा राइट्स था, वो were declared as landowners and others tenants. The tenants were to pay rents to the landowner. जिन्होंने भी लैंड उनको डोनेट की है, उनको जो टेंटेंट्स है, दे हैव टू पे रेंट टू लैंड ओनर्स. उनको रेंट देना होता है. हु इन टर्न पेड रेवेन्यू टू दी स्टेट. और जो लैंड ओनर है वो ऐसे जो भी रेंट उनको मिलता है वो कैसे उनको पे करते थे, इनकम, वो रेवेन्यू पे कर देते थे. ओके, स्टेट के लिए. सो द ब्रिटिश एफर्ट टू सेटल जम कल्टिवेशन वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल. बट ब्रिटिश लोगों ने जो एफर्ट किया वो सक्सेस नहीं हुआ. वाई? Settled plough cultivation is not easy in areas where water is scarce and the soil is dry. वो जो plough cultivation है ना, वो जहाँ पे ज़्यादा वाटर होता है और ड्राई सॉइल नहीं होती, वहाँ पे ही वो सक्सेस होता है. बट वेयर वाटर इज स्कैर्स एंड सॉइल इज ड्राई, वहाँ पे वो कल्टिवेशन नहीं हो सकता. ओके, सो in fact drum cultivation who took to plough cultivation often suffer. means उन लोगों को जो भी drum cultivation करना होता है, they always suffered. Why? because there was scarcity of water and the soil was not fertile. Okay, so since their fields did not produce good yields, वो उनकी जो मेहनत वो करते थे, उनसे
उनकी मेहनत जितनी थी वैसा उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था. ओके, वाई? बिकॉज वाटर इज स्कैर एंड द सॉइल इज ड्राई. सो द जम कल्टिवेटर्स इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया इंसिस्ट, उन्होंने इंसिस्ट किया कि हमें हमारा ट्रेडिशनल फॉलो करने दो, हम वो जो कर रहे थे, शिफ्टिंग कर रहे थे, वैसा हमको करने दो. सो facing widespread protests, the British had to ultimately allow them the right to carry on shifting cultivation in some parts of the forest. Okay, उनको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा था. रिजल्ट नहीं मिलेगा तो उनको इनकम भी नहीं मिलेगी, मीन्स रेवेन्यू भी उनका कलेक्ट नहीं होगा. सो व्हाट दे हैव टू डू, दे हैव टू अलाउ द कल्टिवेटर्स टू practice the traditional method because there were no any option, because they were not having good yields. Okay, उनकी मेहनत के हिसाब से उनको रिजल्ट भी नहीं मिल रहा था. उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा होता, फिर ब्रिटिश को रेवेन्यू चाहिए होता, तो रेवेन्यू भी नहीं मिल सकता. सो एट लास्ट दे हैव टू अलाउ ट्राइबल्स टू कंटिन्यू देयर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस. ओके, now forest laws and their impact. The life of the tribal groups, as you have seen, was directly connected to the forest. So changes in the forest laws had a considerable effect on the tribal lives. Okay, so we see that tribal groups जो है वो they are directly connected to the forest. So whatever changes are done in the forest law, so the tribal group are affected. Okay, the British extended their control over all the forest. British लोगों ने क्या किए, what they did, they control all over forest and declared that forest were state property. और उन लोगों ने क्या डिक्लेयर किया कि जो भी फॉरेस्ट है वो किसकी प्रॉपर्टी है, दे वर स्टेट प्रॉपर्टी. सम फॉरेस्ट वर क्लासिफाइड एज रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर. सम फॉरेस्ट को क्या क्लासिफाई किया गया कि दे वर रिजर्व्ड फॉरेस्ट फॉर दे प्रोड्यूस टिम्बर विच द ब्रिटिश वांटेड. जो भी फॉरेस्ट टिम्बर प्रोवाइड करते थे उनको रिजर्व फॉरेस्ट क्लासिफाई किया गया. क्यों? बिकॉज ब्रिटिशर्स वर इन वांटेड ऑफ टिम्बर. इन दिस फॉरेस्ट पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. जो रिजर्व फॉरेस्ट है उन लोगों को उन फॉरेस्ट में पीपल वर नॉट अलाउड टू मूव फ्रीली. उनको फ्रीली मूव भी नहीं अलाउ था. प्रैक्टिस जम कल्टिवेशन, कलेक्ट फ्रूट्स और हंट एनिमल्स. उनको इनमें से कोई भी चीज़ उन लोगों को अलाउ नहीं की जाती थी. ओके, हाउ वर जम कल्टिवेटर्स टू सप्लाई इन सच अ सिचुएशन. ऐसी सिचुएशन में जम कल्टिवेटर्स कैसे सर्वाइव करेंगे. ओके, हाउ मैनी वर देयरफॉर forced to move to other areas in search of work and livelihood. हमने पहले देखा कि ट्राइब्स जो है वो डायरेक्टली कनेक्टेड विथ फॉरेस्ट है, तो जम कल्टिवेटर्स को अब अलाउड ही नहीं होता था फॉरेस्ट में जाने के, तो फिर वो अपना सर्वाइव कैसे करेंगे. ओके, वो फूड कहाँ से लाएंगे. सो दिस बिकेम अ बिग क्वेश्चन. सो व्हाट दे डिड, दे वर फोर्स्ड. ओके, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए उन लोगों ने क्या किया, दे मूव्ड टू अदर एरियाज फॉर व्हाट, इन सर्च ऑफ वर्क एंड लाइवलीहुड. ओके, बट वंस द ब्रिटिश स्टॉप्ड द ट्राइबल पीपल फ्रॉम लिविंग इनसाइड फॉरेस्ट, दे फेस्ड अ प्रॉब्लम. बट क्या हुआ, जैसे ही ब्रिटिश लोगों ने ट्राइबल्स को फॉरेस्ट में रहने के लिए बैन लगाया, ऐसे ही दे फेस्ड प्रॉब्लम, उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ा. फ्रॉम वेयर कुड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट गेट्स इट्स लेबर. जब ट्राइबल पीपल जब फॉरेस्ट में रह रहे थे वो तब सभी वर्क फॉरेस्ट का करते थे वो ट्राइबल्स पीपल, पर जैसे ही ट्राइबल पीपल्स को रिमूव कर दिया गया तब वो कैसा क्वेश्चन अराइज हुआ कि अब जो फॉरेस्ट का सभी काम है वो कौन करेगा और हम लेबरर्स कहाँ से लाएंगे. ओके,
to cut the trees for railway sleepers and to transport logs. ये सब करने के लिए हम लेबर्स कहाँ से लाएंगे? Okay, so there the big question arises here. So colonial officials came up with a solution. They decided that they would give Jum cultivation small patches of land in the forest and allow them to cultivate this on a condition that those who lived in the villages would have to provide labor to the forest department and look after the forest. So in many regions the forest department established forest villages to ensure a regular supply of cheap labor. Okay, so what happens कि जो ब्रिटिश लोग थे उन लोगों ने ट्राइबल्स को अलाउ किया कि आप ड्रम कल्टीवेशन कर सकते हैं बट ऑन अ वेरी स्मॉल लैंड, इतनी सी लैंड में ही आप परफॉर्म कर सकते हो. ओके, सो दे स्टार्टेड डूइंग दिस. हम आपको सब अलाउ करेंगे बट यू हैव टू डू इट बाय आर मेथड. हम जो बोले आपको वैसे ही करना होगा. ओके, सो ऑल दिस टुक प्लेस एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश फॉरेस्ट विलेजेस to ensure a regular supply of cheap labor. उनको लेबर की ज़रूरत थी इसलिए उन लोगों ने क्या किया? दे established a forest villages. ओके, और ये सब तो हुआ लेकिन सम ट्राइबल्स ऐसे थे जिन लोगों ने ये रूल्स ओबे नहीं किए. दे disobeyed the new rules, continued with the practices that were declared illegal. उन लोगों ने वो ही अपनी ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस कंटिन्यू रखी और वो क्या डिक्लेयर हुई कि वो इलीगल है. एंड द टाइम रोज इन ओपन रिबेलियन. सच वॉज द रिवॉल्ट ऑफ सोंग्राम सगमा इन 1906 in Assam and the forest satyagraha of the 1930s in the central provinces. और क्या हुआ कि फॉरेस्ट सत्याग्रह टुक प्लेस. ओके, वो डिसओबे करते थे रूल्स इसलिए उनको क्या बोला गया कि दे आर डूइंग इलीगल वर्क. सो द सत्याग्रह वाज डिक्लेयर्ड ऑफ द 1930s in the central provinces. Okay, so I hope you understood half of the lesson. So it was the first part of the chapter. Now we'll continue with a second part afterwards in another lecture. Okay, thank you.